Hey guys, how are you? Today we are going to discuss about a new mode of synthesizing of the food. We all read about the autotrophic mode of nutrition in which the organism can synthesize their own food by their self activities. They their own can synthesize their food using the sunlight, and this mode of synthesizing of food is known as photosynthesis. Now we are discussing a new mode of synthesizing the autotrophic mode of nutrition, that is known as chemosynthesis. If we split this word chemosynthesis, then we found that it is made up of chemo and synthesis. Chemo means chemical. Chemo refers to chemical and synthesis formation. According to this, we can say that some organisms can synthesize their own food by using the chemical energy. Some organisms, example given here, it is the bacteria, especially synthesize their own food or energy source by using energy obtained by the oxidation of inorganic substances. In the biosphere, at every place sunlight is not available. In the case of oceans or sea, the sunlight can't penetrate beyond 175 to 200 meters. At that place is totally dark, and in lack of sunlight, the organisms which are present on that particular place, how can they synthesize or how can they obtain their food, obtain their energy? It's a vital question. Certainly, they use a new mode of synthesizing their food by using the chemicals which is obtained from the oxidation of the inorganic substances. These bacteria are, or the example of such a type of organisms are the nitrogen bacteria as well as the sulfur bacteria. First we just discuss about the organisms or the bacteria which is present at the bottom of the sea or oceans. You know that the bottom or the surface of the oceans or the sea contains several volcanoes, and the vent or the crater or the mouth of the volcano always evolving different type of gases as well as the heat also. So such a place is also be known as hydrothermal vents. Hydrothermal vents, and the specific sulfur bacteria or different species of such bacteria just collected there, gathered there, and use the heat as a source for synthesizing their food. Dear students, on the other hand, or in the second example, the bacteria present in the soil like nitrosomonas bacteria or the nitrobacters, denitrifying bacteria, or the nitrogen fixating bacteria which can convert the nitrates, nitrites or the ammonia and use all these inorganic substances as a source of energy for synthesizing their food. प्यारे बच्चों और फ्रेंड्स, आज हम
एक नए प्रकार के स्वपोषी पोषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रकार के पोषण का नाम है कीमोसिंथेसिस, जो कि हमने पहली बार फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि सनलाइट और क्लोरोफिल इस दोनों के प्रेजेंस से जो है भोजन का निर्माण होता था। लेकिन अभी दूसरे प्रकार जो कीमोसिंथेसिस है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कीमोसिंथेसिस दो अलग अलग शब्दों के जुड़ने से बना हुआ है। पहला है कीमो, दैट रेफर्स टू द केमिकल, जो केमिकल को बताता है, रसायन को बताता है, और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फूड का वैसा फॉर्मेशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, सजीव जो हैं, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, वो जो है एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? ये नाइट्राइट, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकते हैं, है ना, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हो सकते हैं। तो इसके यूज के द्वारा हमने आपको इसी में बताया, और या हम फिर इससे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जो हमारा समुद्र का तल होता है, जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ये जो बहुत सारे समुद्र जो हैं ये काफ़ी गहरे होते हैं, और सूर्य का प्रकाश 150 से 200 मीटर की गहराई के बाद नहीं जा पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। फलस्वरूप नीचे घोर अंधेरा होता है, और समुद्र के सतह पर, बॉटम पर, सरफेस पर काफ़ी हलचल होती रहती है। इसी के कारण आप देखते हैं कि समुद्र में, है ना, सुनामी आदि आते रहते हैं, भूकंप आदि आते रहते हैं। तो इस स्थिति में वहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनो, प्लूरल ऑफ वॉल्केनो, है ना, वो जो है फटते हैं, तो और उसके मुंह से गर्म गैस, लावा आदि निकलते रहते हैं। तो यह जो हीट एनर्जी उसके मुंह से निकलती है, इसे ही जो है हम लोग हाइड्रोथर्मल यह जो मुंह होता है उसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, जो कि प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी। और इसी को जो है यहाँ से निकलने वाले H2S को या उसके हीट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि भोजन के निर्माण में, ग्लूकोज के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। फोटोसिंथेसिस में तो सूर्य प्रकाश को जो है यूज किया जा रहा था उस क्लोरोफिल नाम के वर्णक के द्वारा, और वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम यह ध्यान देंगे कि इस स्थान पर ये हाइड्रोथर्मल एनर्जी का ही जो है यूज होता है, और यह भी एक स्वपोषी पोषण है, क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ फूड जो है यह अपने से सरल पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिड्यूस्ड करके भोजन को प्राप्त किया जा रहा है। आशा करता है कि आप जो है इसको भली प्रकार से समझ गए होंगे। वैसे तो इसका कोई इक्वेशन दिया नहीं जा सकता, लेकिन सामान्यतया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस केमिकल्स, है ना, रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सम केमिकल कंपाउंड्स। इसी को हमने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया है, 12H2S प्लस 6CO2 एरो C6H12O6, दैट इज द ग्लूकोज, एंड प्लस 6H2O प्लस 12S। लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे, आप जिस भी तरह से उसको बैलेंस कर सकें, इस प्रकार के इक्वेशन को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन एज ए होल हम इसी प्रकार से दे सकते हैं। एग्जाम्पल में कि कहाँ होता है, यदि आपको पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, तो हम इसके उदाहरण में हमने आपको नाइट्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया में हमने नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया का भी नाम हमने दिया है, और सल्फर बैक्टीरिया का नाम हमने दिया हुआ है। तो आज इसमें इतना ही, आगे हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।